श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञानां शुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्ठान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। So we saw प्रज्ञान अंश प्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान्. So we saw what is the meaning of vyapya, vyapaka, bhav, vyapibhi, vyapya. What do you mean by that? That we saw. Now, this way, now Bhagavan continues in his introduction. Pratana. Now let us see the meaning of pratana. Pratana means vistara, pervading. Pratana. Pratana means vistara. So the question is, what is Brahman doing in all these three states? He is pervading all the vyapvir vyapya lokan. What is he doing? So he is. What is that? Next we see three sentences. Pratana means here prajnanamsha pratanaihi. Pratanaihi. Pratanaihi means vyapakam, pervading, vistara. Pratanaihi. And we say, what is the vyapya, vyapaka? What do you mean by vyapakata? That we saw yesterday. But what is it is pervading? Pervading what? Pervading sthira. Sthira means objects which do not move. And chara is that objects which move. That means both animate and inanimate, sentient and insentient, living and insentient, non-living. All those things he is pervading. Now pervading, yesterday we saw vyapa, vyapya, vyapaka bhav. So that you have to understand. Not like iron ball or fire pervading the iron. Not even the mud pervading the pot. But here the rope pervading the snake, sky pervading the blueness. Because what is pervaded by the consciousness is not real. So this we saw yesterday. So keep that understanding. It should flash in our minds.
So he is pervading. Sthirachara, all the moving and immovable objects. And through this, bhuktva bhogan sthavishtan. Now see, let us understand this. Bhuktva bhogan bhuktva sthavishtan. Through this, another aspect of the prajnana is mentioned here. What is another aspect of this prajnana that is shown here? What is bhoga? Bhoga, bhuktva bhogan, enjoying or having experienced, having gone through. Bhogan. Bhoga shabda, that experiencing sukha or dukkha is called as bhoga. Now, actually, in experience of every sukha and dukkha, we are getting the knowledge also. So, Mahatmas have mentioned the knowledge that we get out of every sukha or dukkha is called as bhoga. Otherwise, if the knowledge is not born, how can you call it as bhoga? Sukha, dukkha. This is how do we know this is sukham and dukkham? Out of our knowledge. So, the experience what it gave us as sukham or dukkham is known through us, unknown to us by jnanam, is it not? Not illumining, not in that jnanam. Illumining is different. I am not talking of that in that sense. This is sukham. Why? This is my knowledge. Knowledge born out of a particular experience. That knowledge I am calling it as sukham. Knowledge born out of particular experience, that knowledge, it is making me understand. That knowledge is called as dukkham. So therefore, bhuktva bhogan sthavishtan. So bhoga means what? Bhoga means not mere experiences. Knowledge of our experiences is called as bhoga. अब देखिए थोड़ा मांडुक्य में हमारा समझ थोड़ा बढ़ते जाएगी. अभी तक हमने जो समझ के रखा है कि सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, सुख दुख हो गया. ना 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 ना, सुख से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को हम कहते हैं भोग. दुख से हमें जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान माने नॉट थियरेटिकल, बिकॉज ज्ञानम चक्षुरादि करण द्वारा बहिस्पंदते. आगे देखेंगे, धीरज रखिएगा. सो हियर वन इज द, अब देखिए मैं आप पक्की बात मैं पहले बता देता हूं. मांडुक्य कार्य का इज एक जीववाद. इट स्पीक्स अबाउट एक जीववाद, नॉट अनेक जीववाद. व्हाट डू मीन बाय दैट? एंड दूसरा बात मैंने कह दिया, मांडुक्योपनिषद दिस दृष्टि सृष्टिवाद, नॉट सृष्टि दृष्टिवाद. In other textbooks like Panchadashi, Vicharasagar, in all those such Vedanta Prakarana Granthas, there not Drushti Srushtivada, it was Srushti Drushtivada. There is Ishvara who created this Jagat, who he created the Jiva also, is a born. And the Jiva is experiencing the Jagat, and Ishvara Srushti, Jiva Srushti, the true Srushti वहाँ पे बता दिया. Ishvara Srushti is one, Jiva Srushti is अनेक, and superimposing Bhoga Buddhi on Ishvara Srushti is Jiva Kalpitam, and Jiva, the sadhaka, Rupena, when he does sadhana, he comes to know the truth, and thereafterwards to him
this duality perishes. But he might find some other jivas still caught up in samsara. So Aneka Jivavada was mentioned. Here, there are no so many jivas in Mandukya. This consciousness is pervading our waking state, means individual waking state, individual dream state, individual deep sleep state. There are no individual waking, individual dream, individual deep sleep state according to Mandukya. Mandukya is Eka Jivavada. There is only Ekamatra Drashta. Bas. Ek hi Drashta hai. Drashta of the waking plane, dream plane and deep sleep state plane. Therefore, there is only one jiva. No अनेक जीवास. ये समझना थोड़ा कठिन है. Paramatma is there. He created his own cosmic waking plane, cosmic dream state, cosmic deep sleep state. And his same consciousness is expanding, pervading the cosmic world objects. Where objects are in what way? Like rope pervading the snake, like skyness pervading the blueness. This is illusory. Like as much as a dream. Dream is pervaded by your mind, but dream objects are nothing but your mind. Dream objects other than your mind has no satta of its own. So Eka Drashta, Ekamatra Drashta is there. And he is playing in three states, that is cosmic waking plane, cosmic dream state and cosmic deep sleep state. He is playing himself through Maya, and that Maya is his own Maya, under his own control he is playing. And from the Maya point of view, the fourth state is referred as Turiya, Parabrahma Paramatma, unconditioned. So he plays and he withdraws. That is his Leela. There are no, only Eka Drashta. There is no so many Drashtas. This is Mandukya Karika position. Mandukya Upanishad position. इसलिए प्रज्ञानाम शुप्रतानैः स्थिरचर निकरस व्याप्यभिर्व्याप्य लोकान. When it is said, it is not Vyashti, it is Samashti. Not Paramatma consciousness expanding your dream world, your waking plane. आप है ही नहीं उसमें. In Eka Jivavada, Aneka Jivatva is an illusion. है ही नहीं. In the dream, I may dream so many thousands of people, but actually I myself in the dream form. So I myself in all the river is me, plant is me, men are me, women are me, Sukha is me, Dukkha is me, Gunda is me, Sadhu Sant log wo bhi मैं हूँ. तो ये का दृष्टा बस. And what is seen? Not so many experiences, individual experience. आप जब जान से आप सुन लीजिएगा, स्वप्न में आप जो स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में अन्यों का अनुभव आपको नहीं मिलेगा. समझ में आया कि पता नहीं. In the dream state, you will not experience what others in the dream is you alone. Even then the others in the dream is your mind, but you are not experiencing what others in the dream are going through. Swapna mein you saw Mr. X and X is crying. X says I am terrible in pain. But that anubhav of X you are not experiencing in dream. But that X also is your mind. But X अनुभव is not coming to you. अब दृष्टा कितने हैं? एक ही है. अब सारे जीवों का एक डेरा बना के फेंक दो कहीं,
है ही नहीं। इसलिए इसको मांडूक प्लुति न्याय। नहीं तो मेरा मेरा व्यष्टि को त्याग देके फिर समष्टि में जाना, फिर समष्टि को त्याग करना, समष्टि दृष्टि व्यष्टि दृष्टि, ये सब बकवास नहीं है मांडुक्य में। अब देखिए, स्वप्न में आप सारे प्रजाओं को सृष्टि करते हैं, मगर और शेर को सृष्टि करते हैं, या एक हिरण को भी सृष्टि करते हैं, कौवा को भी सृष्टि करते हैं, सबका सृष्टि आपका मन ही है। बट उनमें से किसी को ये हिम्मत नहीं है कि आपसे पूछने के लिए मुझे पत्थर क्यों बनाया, मुझे शेर क्यों बनाया, मुझे आदमी क्यों बनाया। ऐसा स्वप्न में पूछते क्या आपसे? पूछने का हक ही नहीं है। क्यों? उनका अलग अलग व्यक्तित्व जो दिखाई पड़ रहा है स्वप्न में, वो वास्तव में नहीं है, वो गलत है, एक ही दृष्टा है। समझ में आ रहा है कि छोड़ दूं? है ही नहीं, इतने जीव है, इतने सारे जीव नहीं है। तो परब्रह्म परमात्मा हिमसेल्फ इज प्लेइंग थ्रू 3 स्टेट्स, नॉट योर इंडिविजुअल है ही नहीं। अब देखिए, जैसे स्वप्न का अनुभव मैंने बताया, वो जागृत में ही ला लीजिएगा। जागृत में इतने मैं आई एम सीइंग, एक्चुअली ऑल द दृष्टिगोचर इज माय ओन स्वरूप। जैसे स्वप्न में मैंने मन के द्वारा मैंने सृष्टि किया, जागृत में भी मैं आई एम डूइंग सेम थिंग। सो मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद में, दैट इज व्हाई इट इज मंडूक प्लुति न्याय, इट इज जंपिंग, इज नॉट आपको धीरे 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 लेके नहीं जाता है ट्रूथ। यू विल मेड यू जंप फ्रॉम वन स्टेट टू हायर स्टेट। अनेक जीववाद को छोड़ो, एक जीववाद पकड़ो, इतना कोई नहीं है, एक परमात्मा है, वो अपने आप से खेल रहे हैं, बस फुल स्टॉप। यदि आप कह रहे हैं तो परमात्मा की दृष्टि से वो भी नहीं है, तो इतना तो मान के चलते हैं। चलो, अब कहां अभी व्यष्टि का क्या हाल है बताए? प्रज्ञानांश प्रतान स्थिर चर निकर व्याप्य लोगान भुक्त्वा भोगान स्तविष्ठान। सो यहां पे जागृत अवस्था में व्हाट इज डूइंग नाउ? अब देखिए, वी नो नॉलेज ऑफ ओईटी, ऑब्जेक्ट्स इमोशंस एंड थॉट, उसका ज्ञान तो हम है। भोग के बारे में, भोग माने क्या है? Not mere experience, but knowledge of experiences is called as bhog. मैं पहले बता रहा हूं, मांडुक में जल्दीबाजी करो तो न चलेगा नहीं। कभी कभी हम एक ही कदम लेते हैं, एक घंटे में बस। तो अभी देखिए, नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड भोग। सो वी नो नॉलेज ऑफ ओईटी, हमारा एक दूसरे प्रपंच का ज्ञान तो आई ही, बट उस ज्ञान का व्यापकता का अनुभव हमें नहीं हो रहा है। तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान किसका ज्ञान हो रहा है? ओईटी, ऑब्जेक्ट्स इमोशंस एंड थॉट, दृश्य प्रपंच का जो ज्ञान हो रहा है, बट सारे दृष्टि का ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो माने that ज्ञानम we have, but ज्ञानस्य व्यापकता is absent, इसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है। But whereas the totality is there, now the total chaitanya is there, the total chaitanya has the total knowledge, that's called ज्ञान में व्यापकता। We call that omnipotent, omniscient। We are not omniscient but scient. माने अल्प ज्ञान, when I am illuminating. So suppose for example, आप देखिए एक ज्ञान क्या है? ये ज्ञान प्रज्ञान का मतलब और भी है।
नो वन, दिस इज व्हाट इज ज्ञानम चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। इसका मतलब क्या है? हमें क्या, हम सब क्या समझते हैं? हाँ, इफ वी थिंक इफ द पॉट इज देयर, देन pot knowledge of pot takes place. If chair is there, then knowledge of chair takes place. But the actual truth is, knowledge is in me, ज्ञानम is in me, therefore the pot का भान हो रहा है। मुंडू के ऊपर में जितना आप लोग सारे पढ़ा किया है ना, एक एक स्ट्रक्चर कंबे निकाल के फेंक देंगे। बड़ा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने ओवर द एरियर्स इन आवर अंडरस्टैंडिंग। बड़ा बड़ा हॉल बना दिया हमने विथ 1000 पिलर हॉल, एंड एक एक पिलर उखाड़ के फेंकते रहते हैं। फिर बाद में क्या होगा? स्लैब गिरेगा। किसके ऊपर? हमारे ऊपर। तो हमारा क्या होगा? हम मर जाएंगे। अब मरेंगे तो क्या मिलेगा? परमात्मा ही रहेगा बस। दैट इज मांडुक्य पद्धति। So same Dakshinamurti, Jnanam Chakshuradikaranad Dwara. So Jnana is there, therefore knowledge of pot is taking place. Pot is there, therefore knowledge is there. No, 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 no. So Jnanam is always inside. Jnana means Chaitanyam, Prakasha, illumination is inside. So similarly, therefore what? Vyashtik jnanam is there in us, but jnanasya vyapakata is absent. Now similarly, we all know आनंद। आनंद का मतलब क्या है? That we know, because as our essential nature, and आनंद का भोग हो रहा है कभी कभी लेश मात्र। Upanishad also we say that Ananda Rasa se every jiva is lesha matra, Ananda is taking and surviving. Brahma also, Chaturmukha Brahma also is only licking Ananta Brahma, Ananta Ananda, Ananta, Ananda which is Ananta. So in our case, we know what is Ananda, but we do not know that it is our own essential nature. प्रज्ञान की बात मैं कह रहा हूं। तो वैसे बातों में सच्चिदानंद, हमको ये ज्ञान, आनंद क्या है हम जानते हैं, बट आनंद अपना ही स्वरूप है हम ये नहीं जानते। अच्छा, सी, हमारा आनंद कैसे है? If you have a desire for a particular thing, then that particular thing gives me ananda. I have a desire for X, X I got, so X gave me ananda. We see that anubhav, ananda. Otherwise not. That means what? Our ananda is conditioned by desire. Means sense what? Preceded by desire. Desire prompts and therefore we get ananda. बिना desire हमारा को आनंद कहाँ मिल रहा है बताइए आप? जो आनंद हम जानते हैं, बट आनंद टू गेट वी नेसेसरीली इन्वोक ए डिजायर फॉर इट। वो सात्विक डिजायर हो सकते हैं, न तो राजसिक डिजायर हो सकती है, या न तो तामसिक डिजायर भी हो सकती है। आप जरा सोच लीजिए, डिजायर के बिना मुझे नींद में आ रही है, नींद से मुझे बड़ा मजा आएगा, इसलिए मैं सोने जा रहा हूं। तो मेरी पेक्युलर, तो कितना हम फंस गए सोच लीजिए। तो नंबर 1, आनंद हम जानते हैं, आनंद अपना स्वरूप है ये नहीं जानते। और दूसरी बात है, हर आनंद के पीछे हम जो भोग रहे हैं आनंद, इसके पीछे क्या है? एक इच्छा है। और इच्छा ही हम उस चीज को पूर्ण करने के बाद फिर हमको जो मिलता है उसको हम आनंद कहते हैं। इच्छा के बिना जो आनंद ही हमारा स्वरूप है, ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं। आप सोच रहे हैं कि नहीं? कभी मैं गलत बोल दिया तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा।
कम से कम मुझ में गलतियां पकड़ने के लिए आप होशियार रहिए। Now, so we know what Ananda is, but our own conditions are different. But Anandasya sarva vyapakatvam, that also we don't know. Mane laghu rupena, that too preceded by a desire. We may know what is Ananda, we know a little Ananda, but Ananda is sarva vyap, the vyapakata of Ananda, that also is not known. इसीलिए इन्हें कहा गया कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्लिस फॉर डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट, बट ब्लिस इज सेम. Bliss is one. Objects of bliss vary. Now वे भुक्त्वा भोगान, भुक्त्वा यहां पे इन वेकिंग स्टेट व्हाट डू वी डू? इन वेकिंग स्टेट दैट परमात्मा एक जीववाद ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट, परमात्मा ओनली, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्मिक वेकिंग स्टेट. इन वेकिंग स्टेट हम क्या कर रहे हैं? वी सी ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, एंजॉय ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स थ्रू ग्रॉस बॉडी, एंड यहां पे हमारा सेंसेस ऑल्सो और ग्रॉस. स्थूल इंद्रिय, स्थूल वस्तु, स्थूल शरीर एंड स्थूल सुखम. स्थूल सुखम मीन्स वी कैन परमिट इट, माने जो सुख स्थूल से ही मिल रहा है. स्थूल वस्तु, स्थूल इंद्रिय बट ग्रॉस इंद्रियास, स्थूल शरीर. तो अपना सब एवरीथिंग इज ग्रॉस. देन हम स्वप्न में देखेंगे. स्वप्न में क्या हो रहा है? स्वप्न में ऑल द थ्री थिंग्स आर मेड सूक्ष्म. सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रियास, सूक्ष्म विषय वस्तु. क्या स्वप्न में ये बॉडी लेके नहीं जाएंगे आप स्वप्न में? ये तो छोड़ना पड़ेगा. स्वप्न में ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर टू बी ड्रॉप. स्वप्न में फिजिकल सेंसेस, द सेंसेस स्थूल इंद्रिय ड्रॉप. वहां पे सूक्ष्म इंद्रियाज आ गए. सेम इंद्रियाज इन अदर सूक्ष्म फॉर्म, सेम शरीर इन सूक्ष्म फॉर्म, सेम विषय वस्तु इन सूक्ष्म फॉर्म. तो वहां पे खेल कैसे हो रही है? सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म. अनलेस दिस बेसिक इज अंडरस्टूड, हम आगे नहीं बढ़ सकते मांडुक्य कार्य का. इसलिए हम कई बार, इज माई ओपिनियन, इट माइट बी, इट विल बी ट्रू, इट्स ट्रू ऑल्सो, अपने आप को हम सब धोखा देते रहते हैं कि एक किताब पढ़ के समझ में आ गया करके बंद कर दे. वो बड़ा धोखा अपने आप को हम देते हैं. ये मेरा अनुभव है. हाँ, समझ में आ गया, आ गया. अब फिर दोबारा पढ़ो, कुछ भी समझ में नहीं आया. फिर समझ कब आएगा? when समझ पार करेंगे हम, तब समझ में आ जाएगा. एनीवे, नाउ यहां पे भुक्त्वा नहीं, पीत्वा. सेकेंड लाइन सी, पीत्वा. थर्ड लाइन में पुनरपि दिशनोद्भासितान कामजन्यान पीत्वा. ड्रिंक, यहां पे वी ड्रिंक भोगास. अच्छा, एंड व्हाट डू वी सी इन ड्रीम? कामजन्यान. ब्यूटिफुल. पहला वेकिंग प्लेन में स्थूल वस्तु का अनुभव हम करते हैं. फिर क्या हुआ? भुक्त्वा भोगान स्तविष्टान पुनरपि, अगेन दिशनोद्भासितान कामजन्यान पीत्वा. हैविंग ड्रंक कामजन्यान. स्वप्न में वॉट एवर वी सी द ऑब्जेक्ट्स इन द ड्रीम आर ऑल आर बॉर्न ऑफ कामजन्यान.
our own desire born objects. Kamajanyan means what? What all we desired in waking plane and we could not experience it. All those objects what we saw, but we could not experience in waking plane, we may have imagined, we may have projected, we desired, but we could not. All those things are converted into impressions. So Kamajanyan, born of desire, Dishanodbhasitan. So where what happened now? In that Kamajanyan, all the desires which are not could fulfilled in waking plane, all those objects, desires, we could not enjoy. Those such objects alone we see in the dream. Sometimes मिश्रम हम देखते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं. मैंने ऐसा जानवर को कभी नहीं देखा. गधा शरीर, घोड़ा का मुंह और गाय का पूंछ, ऐसा जानवर को मैं कभी नहीं देखा. तो जागृतावस्था में थोड़ी देखा मैंने ऐसा. नहीं, अलग अलग से देखा होगा, है कि नहीं? देखा. देखने के बाद घोड़ा का शरीर को पसंद किया हो, और घोड़ा का नहीं, घोड़ा का मुंह और गधा का शरीर और गाय का पूंछ को नमस्कार किया. गोमाता गोमाता गोमाता, वो सारे इंप्रेस. इट्स कॉल्ड डिजिटल फोटोग्राफ. सो मिश्रण हो जाते हैं, मिश्रित होके हमारे सामने आ जाते हैं. सो वी गेट कंफ्यूज्ड. कंफ्यूजन कुछ नहीं, उसको अलग अलग करके बिट बिट सेपरेट करके देखोगे ना, तो कितने, हाउ मेनी डिजायर्स आर देयर, एंड poor mind was confused, Kamajanyan, and so many desires are there. It was frustrated, mind was frustrated. मैं एक एक को प्रोजेक्ट करते जाऊंगा तो 24 घंटा सोना पड़ेगा. तो इसलिए आई इंटीग्रेट देम. चलो फटाफट दिखा देंगे. पिक्चर रील, हाईलाइट्स ऑफ योर वेकिंग प्लेन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ड्रीम. एंड इंटरेस्टिंग, that's why ek Mahatma says, we analyze our dreams properly, we will come to know what are all unfulfilled desires we have in our mind. मैं एक उदाहरण मैं आपको दूंगा. मैंने पढ़ा है ये उदाहरण. In 17th century there was a great Appaya Dikshitar, great many songs, many sotra stutis, Shobhakta he was. Margabandhu Stotram, also it was composed by him only. Shambho Mahadeva Dev, that one. Margabandhu Stotram, and he composed many. In 17th century, he wanted to know what is impressions, or what are all impressions are there in his mind. जिनको पता नहीं मेरे मन में क्या क्या अशुद्ध था, छिपी हुई होगी, पता नहीं. और मैं व्हाट आर इंप्रेशन दैट वी हैव, आई हैव इन माई माइंड, आई डोंट नो. उसने क्या किया, इसीलिए उन सारे शिष्यों को बुला के बताया कि मैं भांग पीऊंगा, भांग, और खूब पीऊंगा भांग. भांग पीने के बाद मैं जो बक करता रहता हूँ वो सब उसको लिख के मुझे बता देना. हिम्मत होनी चाहिए ना. मैं बक करता रहूँगा, और जो बक मैं करता हूँ वो सारा कागज़ पे लिख के मुझे बता देना कि मैंने क्या क्या बक किया. तो शिष्य में बड़ी विचित्र की एक्सपेरिमेंट है ये. तो खूब भांग पी लिया और कुछ बोलने लगे. तो उसके बाद मैंने गॉट अंदर भांग का इफेक्ट गया. देन ही आस्क्ड डिसाइपल्स, मैंने क्या क्या बक किया? महाराज आपने आत्मार्पण स्तोत्र लिखा है उस समय. भांग पी के ही कंपोज्ड आत्मार्पण स्तोत्र टू लॉर्ड शिवा. और कोई बक न कहना नहीं. इफ हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, पता नहीं क्या क्या निकलेगा अंदर से. Then he said, I am happy today. Why? इसका मतलब यही है कि मेरे मन में और कोई दुष्ट विचार, नेगेटिव विचार नहीं है. भगवान शिव के अलावा
और कोई मेरे मन में अभी वास नहीं कर रहा है करके बहुत खुश हो गए। तो स्वप्न वास्तव में कामजन्यान, पता नहीं क्या क्या, कितने अंतःकरण शुद्धि होने से बड़ा ज्यादा से ज्यादा भांग पीने के बाद आत्मार्पण स्तोत्र निकलता है। शराबी को देखो क्या क्या बकवास करता रहता है, और आजकल ये नार्कोटिक्स टेस्ट में, ये टेस्ट में क्या पिला के उसको बुलवा देते हैं, वो नशा में चढ़ा देंगे, नहीं तो उनको नशा चढ़ा के पिला के और बोलो पी के सब बता देते हैं रास्ते पर सीक्रेट्स, वॉट एवर इज नेम अनकंट्रोलेबली दे कम आउट। आत्मार्पण स्तोत्र आ गया है विद छंदोबद्ध। दस इन दिस वे हमारे में क्या हो रहा है, ज्ञान रूपता, आनंद रूपता एंड क्रिया रूपता, दिस थ्री आर देयर, एंड वेयर आवर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड देयर क्रिया कम्स आउट टू फुलफिल देम, एंड वी ऑल्सो पसेस। अब देखिए दो हो गया, ज्ञान शक्ति हमने देख लिया, अल्प ज्ञान इज अल्प व्यापक, अल्पता सर्वव्यापकत्व ऑफ ज्ञानम इज नॉट देयर, आनंद इज देयर बट व्यापक आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। एंड तीसरा है दैट व्हेन ऑल ऑफ अस possess क्रिया शक्ति, इट possess a power to fulfill what we want through action। जैसे परमात्मा में एक क्रिया शक्ति है टू क्रिएट दिस वर्ल्ड, वी ऑल्सो हैव ए पावर, बट इन दैट पावर ऑल्सो अल्पत्वम ओनली इज एक्सपीरियंस्ड बाय अस, but not sarvavyapakatvam of that power. So in these three states, bhuktva bhogan stavishtan, now in the dream state, punarapi means, meaning what? Ichha shakti, jnana shakti, kriya shakti we have, but its vyapakatvam ka anubhav, the knowledge of its pervasiveness is not realized by us. This is over. पुनरपि, पुनरपि मीन्स अगेन। देखिए पुनरपि वर्ड, पुनरपि दिशनोद्भासितान कामजन्यान, कामजन्यान born out of desires in the dream, and पुनरपि means when the cause for waking state is dissolved। देखिए जागृत अवस्था का कारण जब विलीन हो जाता है तब पुनरपि माने, इसका मतलब यही है, when the cause for waking state is dissolved, तत्कारणम, immediate कारणम for that day, then now question is, what is the cause for waking state? That which is dissolved. When after dissolution, punarapi meaning after dissolving the cause of the waking state, we enter into dream state. There kamajanyan bhogan vishanodbhasitan kamajanyan pitva. Now what is the cause for waking state? We say after dissolving the cause for waking state, understood, we enter into dream state, understood. But what is the cause for waking state? Cause for waking state is nothing but enjoying the fruits of good and evil actions. Punya and papa karma phala bhoga that takes place in waking plane. Therefore, prarabdha, dharma, adharma, papa, punya, all these things are in waking plane. They are not in dream. In dream में धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ भी नहीं है. So when the cause means what? Dharma adharma papa punya, this is the cause which is making us enjoy the fruits of our punya or karma phala in waking plane. When this cause is temporarily withdrawn, then I enter into punarapi, means that is the meaning. Punarapi kamajanyan, I enter into the dream state. In what is the dream state? Born out of desire. Objects are subtle, indriyas are subtle, body is subtle. What kind of objects I experience? Unfulfilled things in the waking plane. But in the waking plane, the objects are illumined by sun, the external sun, external light. But in the dream, what is that light which is illuminating the dream objects? Dishanodbhasitan, lighted by intellect, my intellect. That is the meaning. Dishanodbhasitan kamajanyan. Wow.
पीत्वा in the waking plane, we know we are seeing these objects. We need light. Which light? External light, gross light. If external light is not there, external objects are not seen. When the dream, which light is? Dishanodbhasitan, meaning bhasitan means illumined. Dhiya, buddhya. So lighted by intellect. So अपना ही कांति में, the बुद्धि तेज में, all the objects in the dream are illumined. Wow. Now we got the point understood. Pitva, and here वहाँ पे भुक्त्वा. भुक्त्वा is भोजनम is a grosser work. You have to चबाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, खाना पड़ेगा. ये सब gross word. भुक्त्वा. सटल वर्ड पीत्वा. इतना मुश्किल नहीं है ना. वेकिंग प्लेन में वेकिंग ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स, ग्रॉस सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस और भुक्त्वा, भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा. सटल बॉडी में, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्म इंद्रियास, एंड वहां खाने की जरूरत नहीं है. पीत्वा, पीना आसानी है कि नहीं खाने से. तो इजीली these experiences are पीत्वा. Having drunk them, सर्वान् विशेषान् सपति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो. Now, afterwards, now दिशनोद्भासितान हो गया, and then सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो. इसके बाद क्या है? नो थर्ड स्टेट. आप देखिए, these states are cosmic states. The one consciousness which is illumining the Jagrata Avastha, Swapna Avastha and Nidra Avastha, of whom एक जीववादा, एक ही दृष्टा मात्र है. हमारे लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बट यहां पे समष्टि की चिंता, समष्टि भी नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे आने के जीव है ही नहीं. So one consciousness which is functioning through cosmic waking plane, having pervaded all the objects and experiencing bhuktva, punarapi, kamajanyan, and subtle mind, the mind of the cosmic personality, pitva, jishanodbhasitan. Then again third state. No, पांडुक्य में फोर्थ स्टेट भी एक्सप्लेन किया है ना, थर्ड स्टेट्स. तो मंगलाचरण में ऑल द थ्री स्टेट्स आर ऑलरेडी टोल्ड. दैट इज द ब्यूटी ऑफ आदिशंकर, शंकरम शंकराचार्य. सो सर्वान् विशेषान् स्वपति. नाउ इन द फर्स्ट वर्ड क्या है? व्याप्य, व्याप्य व्यापक भाव. देन वेकिंग प्लेन में भुंक्त्वा, इन द ड्रीम पीत्वा, एंड इन द डीप स्लीप स्टेट स्वपिति मधुरभुंग. मधुरभुंग, ये भुक्त्वा नहीं, मधुरभुंग मीन्स हैप्पीली. मधु मीन्स ब्लिस. इन बृहदारण्यकोपनिषद इसके ऊपर एक वर्णन आता है, मधुर, मधु. व्हाट इज मधु? मधु इज the bliss only, ananda, rasa, which is there everywhere. Like a bee takes the madhu from every pushpa, the seeker is able to take madhu from everything, whatever he comes across. Waking plane, dream plane, deep sleep, in every experience he is able to take that, feel the principle of pure consciousness, without which the particular state doesn't exist. Therefore for him this focus is fixed, shifted from the plane to the madhu which is hidden. So in the deep sleep state what we enjoy? Only deep sleep state he is enjoying madhu or bliss. Maya sukhena nidra anubhuyate. In madhurabhung, madhurabhung. But how? Mayaya. But through maya.
the bliss what we are experiencing in deep sleep state is through Maya layer, as though the ras is diffused through Maya layer into us. We are drinking, but not direct Madhura rasa, through Maya layer, through if you can call, just for a language sake, through small pores of the Maya net, this bliss is oozing, and that oozed bliss we are licking, and hosh उड़ गए हमारे, वहाँ बैठ गए. That is called deep sleep state. So here माया भोजयन, भोजन कर रहे, भोजन enjoying Maya, but through Maya. Madhura is not direct bliss. Maya bhojayanno. And this one, Madhu is Brahman only, and this Madhu is counted as fourth. Maya Sankhya Turiyam. It is Maya Sankhya. Sankhya is Maya. एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, संख्या. अब देखिए एक ही ब्रह्म वस्तु में ये संख्या कहां से आया? Gananam, counting. Where it has come? So this counting also is Maya Turiyam. From the stand, it is a Maya Sankhya Turiyam. Maya Sankhya. The 1, 2, 3 is Maya. Fourth also is Maya. Why there is no fourth? How careful they are. There is a fourth state of consciousness. Means first 3 accepted as real. That fourth is Maya Turiyam, Maya Sankhya Turiyam. But that is that Param Amrutam Ajam, Amrutam Ajam. That is Amrutam, pure immortal, birthless. That Brahma, Yat Brahma, what that is called, that Brahma, Yat Brahma. So that all pervading Madhu is counted as fourth from the point of view of Maya only, and therefore that Madhura Bhunk Mayaya Yat Asti Tan Natasah Natosmi. Nataha. Nata means already I bend down. But actually Natosmi means bend down is a superficial meaning. Otherwise, the what you call Nataha meaning the Tyagohi Namaso Vachyaha. Nataha, Namaha means Tyaga. That is the meaning. Natosmi means I am bending, not bending actually. I am my salutation, not known. That is all incomplete understanding. Nataha means Tyagohi Namaso Vachyaha. Meaning renunciation, Tyaga is called as Namaskar. What is that Tyaga in Namanam? Abhimana Tyaga is Namaskar. आप देखिए किसी के सामने सिर झुका माने अभिमान का त्याग किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? सो ब्रह्म के सामने अपना सारा अभिमान जो है, अब देखिए किसी विद्वान के सामने जाके आप सिर झुके, किस लिए झुकते भाई? ये महाज्ञानी है, वो हमसे विद्वान है, पढ़े हैं, लिखे हैं, इसलिए. तो वन एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सनालिटी में आप नमस्कार कर रहे हैं. Not all aspects. And that quality in him, what he has, is appreciated by you. क्योंकि जो मूल्य उनमें है, उस मूल्य का गौरव, मूल्य के प्रति आपका गौरव भाव है, आदर है, इसीलिए झुक रहे हैं. आप देखिए, if I don't give value to knowledge, why should I bend?
कोई साधु जा रहे हैं, कोई नमस्कार करते हैं, कोई नमस्कार नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं इनके मन में साधुओं के प्रति कोई आदर भाव नहीं है, इसलिए नमन भाव, अभिमान का त्याग नहीं हो रहा है वहां पे। और कोई दूसरा व्यक्ति आके देखा कि साधु बाबा जा रहे हैं तो नमस्कार करते हैं, इसका मतलब क्या है? साधुत्व के प्रति इसका इनके मन में, अंतःकरण में मूल्य बढ़ गया, इसका एक कीमत है। तो इसीलिए वो अपना अभिमान त्याग करके उस एक ही विषय है इनमें, साधु में साधुत्व, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। साधु का अज्ञान भी हो सकता है, माने इतना ज्ञान भी नहीं हो सकते हैं, फिर भी आप साधु है, दुनिया को त्याग दिया, उस आपको त्याग भाव को ही मैं देख रहा हूं इस फिलहाल, और उसको हमारा देखते हुए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। मैंने मेरा अभिमान को त्याग करके आप में जो मूल्य है, जो क्वालिटी है, उसको मैं तारीफ कर रहा हूं। दैट्स द मीनिंग। अब ब्रह्म के सामने एक एस्पेक्ट को देख के हम झुकते हैं, इन ऑल एस्पेक्ट्स ब्रह्म इज फार सुपीरियर। तो ब्रह्म के सामने हम जो झुकते हैं, सारा अभिमान का त्याग करना ही पड़ेगा, नॉट वन एस्पेक्ट ऑफ अभिमान। कोई धनवान है, धनवान बहुत बड़ा, तो मैं हूं, मैं धन के प्रति अपेक्षा रखता हूं, धन का गौरव भाव से मैं देखता हूं, धनी लोगों को पास में जाना चाहता हूं, इसलिए कोई धनवान दिखाई दी तो मैं झुकता हूं सामने। क्यों? मेरे मन में धन के प्रति एक अपेक्षा है, श्रद्धा है। तो मेरा अभिमान त्याग दिया, मेरे अभिमान के त्याग दिया माने मेरे जो पॉवर्टी है, भिखारित्व को त्याग के उनके सामने मैं नमन किया। तो वन एस्पेक्ट ओनली। अब मैं सुंदरता को मैं प्रेम करता हूं, सुंदरता को मैं तारीफ करता हूं। कोई ब्यूटीफुल है तो मैं उसको मैं मानता हूं। दुनिया में कोई सुंदर रूप में आगे दे जा रहे हो, उस सुंदरता को देख के मैं नमन करता हूं। माने सुंदरता के प्रति मेरे भावना है, इसलिए मैं नमन कर रहा हूं। अब ब्रह्म के प्रति कैसे है? ब्रह्म इज सुपीरियर, सरपैसिंग इन ऑल एट्रीब्यूट्स, इन ऑल एस्पेक्ट्स। देयरफॉर सारा का सारा अहंकार को त्यागना ही नमस्कार होता है ब्रह्म के सामने, वाह, या गुरु के सामने। जब नौकरी में है, आपके बॉस है, बॉस को सल्यूट करते हैं, तो वन एस्पेक्ट ऑफ बॉस ओनली, सारा अभिमान थोड़ा त्याग दे। If he starts interfering in your personal affairs, you say that don't interfere me boss, it is not our mamla, your mamla, shut up. I respect you because you are my boss, that's it. But Brahma is Ananta Shakti, omnipotent, omniscient, all pervading, omnipresent, that is all pervading. Everything is full in him. In that full, अपना जो सारा अहंकार है, अभिमान है, तो ब्रह्म के सामने झुकने से सारा अभिमान को झुक के ही नमन करना पड़ता है। और किसी के सामने झुकने से सारा अभिमान का झुकने का या न तो त्यागने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान को हम जब नमस्कार करते हैं, उसमें बहुत बड़ा कीमत है, वैल्यू है। ब्रह्म, बट यहां पे ब्रह्म कौन है? दैट वन हु इज एक्सपैंडिंग कॉस्मिक लेवल, वेकिंग प्लेन, ड्रीम प्लेन, डीप स्लीप स्टेट, इज व्याप्य व्यापक भाव, भुंक्त्वा पीत्वा मधुर भुंग भोजयन्नो, बट मायातीतम, द ब्रह्म वन हु इज एक्टिंग ऑल दिस, परब्रह्म परमात्मा अजम, टू दैट परमात्मा माय सैल्यूटेशंस, नतोस्मि। सो कल हम देखते हैं सेकंड वर्स, एक बार पढ़ लेंगे। प्रज्ञानां शुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्याप्यभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि
दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।